اس نے موبائل نکالا اور میسج ٹائپ کرنے لگا، تم سامنا نہیں کرنا چاہتے اسی لیے فرار ہوئے ہو نا یہاں سے، مگر تمہیں جواب دینا ہوگا عورت شیر، تم ایسے نہیں بھاگ سکتے، اپنا کیس تیار کر لو، آج کی پوری رات ہے تمہارے پاس، میں کل کی فلائٹ سے تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم کہاں بھاگتے ہو، اب مزید ہمیں چکمہ نہیں دے سکو گے، تمہیں کیا لگا تم ہماری ناک کے نیچے اندر ہی اندر سب کھچڑی پکا لو گے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا، تم شاید بھول رہے ہو کہ ڈیڈ سے کچھ چھپانا مشکل ہے، تم نے جس دن ان سے جانے کی پرمیشن لی تھی نا، انہوں نے مجھے تبھی انفارم کر دیا تھا کہ پتہ کرو اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ایک طویل میسج لکھ کر اسے سینڈ کیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا، کبھی ایسے ہی ایہان پاکستان آنے سے انکاری تھا اور ایسا ہی کچھ ملتا جلتا وارننگ میسج میر شاہ کی طرف سے اسے دیا گیا تھا۔ تاریخ کے پنے ایک بار پھر سے پیچھے کو پلٹ رہے تھے، مگر اس بار سامنے ایہان نہیں عورت شیر تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے، وہ جتنا سوچ رہا تھا الجھ رہا تھا، اسے ڈیڈ کو انفارم کر کے ٹکٹ کنفرم کروانی تھی، ایک دو اور مسئلے تھے جن میں وہ پھنسا ہوا تھا، یہ پولیس کی جاب اور اس کے نئے نئے مسائل، فی الحال تو آنے والی مصیبت سے نپٹنے کے لیے انرجی چاہیے تھی، اس نے الگ جان مصیبت میں ڈال رکھی تھی، وہ لڑکی جانے کیوں نہیں سمجھتی تھی کہ لڑکی ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عورت کے لیے کچھ حدود مقرر ہے، یوں دیدہ دلیری سے مردوں کو سوٹ کرتی تھی، عورت میں اس چیز کو معاشرہ بے شرمی اور بے حیائی خیال کرتا ہے، اور ان کے یہاں تو خواتین بہت سادہ، بہت باپردہ اور چار دیواری کی حد میں رہنے والی تھیں، یہ آزاد خیال لڑکی کسی طور اس کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی، اس کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، وہ سب اپنے سے پہلے اپنے سے جڑے رشتوں کے بارے میں سوچتے تھے، مگر ظائشہ کے لیے یہ سب مشکل ہو سکتا تھا، وہ ظاہر کے معاملے میں بہت شدت پسندی شو کرتی تھی، یقیناً آنے والے وقت میں وہ یہ سب مینج نہیں کر پائے گی، وہ اپنی فیملی کا بڑا بیٹا تھا، اس کی جاب کے ساتھ اس کی بہت سی ذمہ داریاں بھی تھیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اسے اپنی شریک حیات کے طور پر ایک میچور اور ٹھنڈے مزاج کی لڑکی کی ضرورت تھی، جو اس کے ساتھ مل کر رشتوں کو نبھا سکے، سب کو جوڑ کر رکھ سکے، جبکہ ظائشہ اس سانچے میں کہیں فٹ نہیں بیٹھتی تھی، وہ تو ابھی ظاہر اسے لفٹ نہیں کرواتا تھا تو بھی اس کا یہ حال تھا کہ جب دل کرتا جو دل کرتا کرتی تھی، وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے، اور پھر اس کے بار بار منع کرنے پر وہ ضد میں اس کو چڑھانے کے لیے بھی یہ سب کرتی تھی، مگر وہ پریکٹیکل بندہ تھا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبھانے والا، وہ ایک پاگل سی لڑکی کے لیے یہ سب فراموش نہیں کر سکتا تھا، کل کو کوئی مسئلہ ہوتا اور لوگ تماشا دیکھتے، اس سے بہتر تھا کہ آج ہی سب یہ اپنے طریقے سے اینڈ کر دیتا وہ، اس نے سگریٹ سلگائی کہ اسے شدت سے طلب ہو رہی تھی، قریب 20 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھی اور کچھ الجھی ہوئی بھی، خیر الجھا ہوا تو آج کل وہ بھی بہت تھا، بولو کیا بات تھی جو واویلا مچایا ہوا تھا تم نے، کبھی تو صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، لازم ہے کہ تم ہر بات پر ضد کرو، ہر وقت کا بچپنا بالکل پسند نہیں مجھے، تم کبھی فری ہوتے ہو؟ جب مجھے بات کرنی ہو، ملنا ہو، تم ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے ہو کہ میں بزی ہوں، یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میڈم، میں رشتوں کی ڈور سے بندھا ہوا ہوں، احساس کے داغوں نے پابند کیا ہوا ہے مجھے، فرائض کی پاسداری میرے لیے ہر چیز سے پہلے ہے، مگر تم یہ بات نہیں سمجھتی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم سب سے پہلے اپنے لیے سوچتی ہو اور میں سب کے بعد اپنے کے لیے سوچتا ہوں، ہم میں ایسا کچھ بھی نہیں جو میچ کرتا ہو، میری پرسنالٹی اور تمہاری شخصیت یکسر مختلف ہے، اس بات کو سمجھو اور موو آن کرو اپنی لائف میں، تم سے شادی کرنی ہے ظاہر شاہ میر، تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس کے اتنا بولنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور جواب میں وہی بات شادی والی، ظاہر شاہ میر تم اتنے پتھر دل کیوں ہو، وہ اب باقاعدہ اس کا گریبان پکڑے کھڑی تھی، مطلب ہمت کی داد تو بنتی تھی ظائشہ رحمان کی، تم اب حد سے بڑھ رہی ہو، وہ لڑکی کبھی کبھی ظاہر کا دماغ ضرورت سے زیادہ خراب کر دیتی تھی، اب سڑک کنارے اس کا گریبان پکڑے کھڑی تھی، حد ہے، آنے جانے والے مڑ کر دیکھ رہے تھے، تم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو شادی کرو گے نا، وہ عاجز آ چکی تھی اس بندے سے، ہاں کروں گا، وہی سنجیدہ اور سرد لہجہ، وہی نپا تلا سا جواب، تم مجھ سے کر لو، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، ناممکن، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو غائب کر دے کہیں، تو کس سے کرو گے شادی، میں کسی راہ چلتی کسی فقیرنی سے کر لوں گا مگر تم سے نہیں، اس نے اخیر کر دی اسے تپانے کی، وہ آج اسے کوئی رعایت نہیں دینے والا تھا، اللہ کے نام پہ دے بابا، اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ روڈ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی، سارے جہان کی حیرت اس کی آنکھوں میں آن سمائی، کیا تھی وہ لڑکی، یہ لو بن گئی فقیرنی، اب کر لو شادی، وہ مزے سے بولتی اس کا دماغ مزید خراب کر رہی تھی، اٹھو تماشا مت لگاؤ یہاں پر، وہ جانے اب تک کیسے تحمل سے کام لے رہا تھا، مگر اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، اس شہر کی سڑکیں بھی ظاہر شاہ میر کا احترام کرتی ہیں، اور تم ہو کے سر عام میرا تماشا بنوا رہی ہو، یہ کچھ بھی ہو مگر یہ محبت ہرگز نہیں ہو سکتی،
सकती थी। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो भी आज बात किसी सिरे लगाना चाहती थी। बहुत ही कोई घटिया तरीका है ये, मगर मुझ पर असर नहीं करेगा। हाँ, तुम तो हुई पत्थर, तुम पर तो कुछ असर करेगा नहीं। मैं अगर मर भी जाऊँ तो तुम्हें कौन सा फ़र्क पड़ेगा, है ना? बिल्कुल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। वो आज उसे हर तरह से मायूस कर देना चाहता था। हमेशा की तकलीफ से बेहतर था कि वो कुछ दिन रो धोकर आगे बढ़ जाती। बहुत समझा कर देख लिया था उसने उस लड़की को। मैं सच में मर जाऊंगी। वो जनूनी था तो वो भी पागल थी। मर जाओगी क्या? अभी जाकर मर जाओ, जान छोड़ो मेरी। उसने बाकायदा हाथ जोड़े उसके सामने। ना उस लड़की को अपनी इज्जत का ख्याल था ना उसकी। हर जगह उसका तमाशा बनवाती थी। ऑफिस में, उसके भाइयों के सामने, कभी रेस्टोरेंट में, जहाँ दिल करता शुरू हो जाती। उसे ज़रा एहसास नहीं था कि वो एक लड़की है। मुझे आजमा कर घाटे में रहोगे, वो जैसे कोई फैसला करके निकली थी घर से। मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। सामने वाला बला का पुरसकून था। बहुत पछताओगे, याद रखना, बहुत पछताओगे। एक आंसू टूटकर पलकों से गिरा। उसे यकदम खौफ महसूस हुआ सामने खड़ी उस लड़की से, मगर जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। तुम अच्छे से जानती हो मैं अपने फैसलों पर पछताया नहीं करता। उसको अपनी आवाज़ जैसे बेगानी सी लगी। दिल में एक एहसास सा जागा, मगर वो दिमाग की सुन रहा था। डरो उस वक्त से जब मैं पछताऊं कि ना ख़त्म होने वाले सिलसिले तुम्हारे नाम कर जाऊं ज़ाहिर शामिर। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ भीग चुकी थी। तुम्हारे वजूद समेत तुमसे जुड़ी हर चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी से नोच फेंकूंगा, चाहे वो तुम्हारे नाम के पछतावे ही क्यों ना हो। जान छोड़ो मेरी। उसने बाकायदा हाथ जोड़े उकताहट भरे लहजे में कहा। यह आखिरी वार था शायद उसकी तरफ से। तो जाओ, चले जाओ और पलट कर मत देखना। मैं मर भी रही हूँ तो तुम लौट कर मुझ तक मत आना कि मेरे साथ मेरे दिल में मौजूद मोहब्बत भी दम तोड़ देगी। कहकर वो उसकी तरफ से रुख मोड़ गई। जाहिर कुछ कहना चाहता था, मगर फिर न जाने सोच कर जाने दिया। वो दोनों अब मुंह मोड़े मुखालिफ सिमत में चल रहे थे कि कुछ ही लम्हों के बाद फिजा में एक दिल खराश चीख बुलंद हुई। वो झटके से पलटा तो कुछ दूर तक सड़क के किनारे वो खून में लथपथ पड़ी थी। उसे लगा वो कोई ख्वाब देख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? मगर वो ख्वाब नहीं था। वो दीवाना वार उसकी तरफ बढ़ा, घुटनों के बल उसके पास गिरने के से अंदाज में बैठा, उसका खून में लथपथ सर अपनी गोद में रखा। नहीं जानता था उसको कहाँ कहाँ चोट आई थी। बस हर तरफ खून ही खून था जो पानी की तरह उसके जिस्म से बह रहा था। एक पल को नजरें मिली और वो आंखें मूंद गई। हे उठो, आंखें खोलो। वो जैसे पागल हो रहा था उस वक्त कि ये हो क्या गया था। वो उसके मिजाज की शिद्दत पसंदी से खौफजदा था कि आगे जाकर उन्हें मसला हो सकता है। इसीलिए उसने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। मगर वो ऐसा भी नहीं चाहता था कि वो सच में मर जाए। वो उसे झंझोड़ रहा था, मगर वो अब उसकी नहीं सुन रही थी, जैसे कभी उसकी सुनता ही नहीं था वो। देखें, मेरी कोई गलती नहीं, ये खुद मेरी गाड़ी के सामने आई थी। एक आदमी उसके पास खड़ा अपनी सफाइयाँ दे रहा था। गाड़ी का लॉक खोलो। उसने बिना कोई जवाब दिए जेब से चाबी निकालकर उसकी तरफ उछाली और उसको बाहों में उठाते तेज तेज कदम उठाते भाग रहा था तकरीबन वो। उसे बैक सीट पर लेटाकर ड्राइविंग सीट संभाले गाड़ी नहीं चला नहीं उड़ा रहा था। साथ साथ मुड़कर उसे भी देख रहा था जो सुध बुध गवाए हर चीज़ से बेनियाज हो चुकी थी। काश कि अब वो देख सकती कि वो पत्थर उस वक्त मुँह मुआ जा रहा था उसके लिए। कभी हसरत थी उसको कि वो ज़ाहिर आमिर के चेहरे पर अपने लिए कोई नर्म, मोहब्बत से पुर, फिक्रमंदी से भरा, कोई जनून और दीवानगी से लबरेज तासुर देख सके। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा संजीदा, सर्द और एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए होता था। और आज जब उसकी हसरत हकीकत बनी थी तो वो देख नहीं पा रही थी। गाड़ी की ऑफ वाइट सीट खून से भर चुकी थी उस वक्त तक। ज़ाहिर को ज़िंदगी हाथों से जाती महसूस हो रही थी। उसके सर पर शदीद चोट आई थी और यही बात परेशान करने वाली थी। चूंकि सब उसको जानते थे, इसलिए बिना किसी फॉर्मेलिटी में पड़े जायशा को इमरजेंसी में ले जाया गया। जबकि वो लंबा चौड़ा वजी सा बंदा पुलिस यूनिफॉर्म पहने, जिस पर उसका खून लगा था, गुमसुम सा एक तरफ खड़ा था। अभी चंद मिनट पहले ही तो वो उसके सामने थी, उससे बात कर रही थी, लड़ झगड़ रही थी। कैसे बिना किसी खौफ के धड़ल्ले से चलती शाहराह पर उसका गिरेबान पकड़े खड़ी थी। और अब वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। वो जो भी चाहता था, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। ओटी तैयार था, उसे ले जाया जा रहा था। उसकी पल्स कम हो रही थी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी थी, स्टाफ की दौड़ें लगी हुई थीं, जबकि वो जामिद था। उसके अंदर जो भी चल रहा था उसके चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था उसका। सबसे पहले दिलशेर पहुंचा। भाई साहब ठीक है ना, आप ठीक हैं? वो उसके यूनिफॉर्म पर लगा खून देखकर परेशान हुआ। बस यही कहा और फिर चुपचाप नज़रें यकटोक ऑपरेशन थिएटर की जलती लाल बत्ती पर जमा दी। भाई आप इधर आए, बैठे यहाँ। दिलशेर ने उसका बाजू पकड़कर पास पड़े बेंच पर बिठाया। वो किसी रोबोट की तरह साकित था। क्या हुआ भाई, आप ठीक है ना? कैसे हुआ ये सब? और भाभी कैसी हैं? जुरेज हाँफता हुआ वहाँ दाखिल हुआ। जवाब निदार। भाई, जुरेज ने बाकायदा उसका हाथ हिलाया। हाँ, क्या कह रहे थे तुम?
आप घर चलकर चेंज कर लें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। जुरेज ने उसकी हालत के पेश नज़र बात बदल दी। ठीक हूँ यार, फिक्र मत करो तुम लोग। उसने पीछे दीवार से टेक लगाए, जिस्म को ढीला छोड़ा। मगर आपका यूनिफॉर्म सारा ख़राब हो चुका है, आपको चेंज करना चाहिए। घर जाकर कर लूँगा चेंज, भाभी ठीक हो जाएंगी, आप परेशान मत हो। वो सब जब से उन्हें पता चला था कि जायशा को भाभी ही कहते थे। बाकी तो फिर जाहिर की आंखें दिखाने पर चुप हो जाते, मगर जुरेज शुरू दिन से जायशा को भाभी ही कहता। चाहे जाहिर घूरता रहता, वो ढीठ बना रहता। वक्त की सुइयां आगे बढ़ रही थी, मगर ऐसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। दिल शेर ने मोमिन के हाथ जाहिर के कपड़े यहीं मंगवा लिए और फिर मिन्नत तरला करके उसको चेंज भी करवा दिया। भाई कम से कम 2 छींटे मुंह पर पानी के ही मार ले। वो जब चेंज करके निकला तो दिल शेर मुखातिब हुआ। उसने चुपचाप नल खोलकर मुंह पर पानी के छपाके मारे और गीली उंगलियां बालों में फेरते माथे से बाल हटाए और बाहर निकल आया। लाइट स्काई ब्लू कलर के कलफ लगे शलवार कमीज में वो ऐसी दिल करीफ्ता सिचुएशन में भी सहरंगेज लग रहा था। सर मजीद ब्लड चाहिए, हमारे पास जो था हमने लगा दिया, आप ये ब्लड ग्रुप अरेंज करें। नर्स ने एक चिट उनकी तरफ बढ़ाई जिसे जुरेज ने थामा था। मेरा ब्लड ग्रुप यही है, आपको जितना चाहिए ले ले। दिल शेर ने एक नज़र पर्ची पर डाली और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आप आ जाएं मेरे साथ। मोमिन और जुरेज दोनों उसके पास मौजूद थे। 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। हाय क्या खूबसूरती, हाय क्या सारी खूबसूरती इन्हीं लोगों ने ले ली है। 2 लड़कियां जो शायद किसी पेशेंट के साथ थीं, कुछ फासले पर नर्स बेंच पर बैठी मुसलसल उन्हीं की तरफ देख रही थी और खुसर पुसर भी कर रही थी। लो एक और शहजादा आ गया। दिल शेर जो 2 बोतलें खून देकर आया था उस पर कमेंट किया गया, जिस पर दिल शेर की एक तगड़ी घूरी उन लड़कियों को मौसूल हुई तो खिसियानी होकर इधर उधर देखने लगी। जुरेज उनके लिए चाय और दिल शेर के लिए शेक बनवा कर लाया था। जाहिर ने इशारे से मना कर दिया, जिस पर मोमिन ने जुरेज को इशारा किया। अगर भाभी को पता चल गया ना कि इतने घंटों तक आप बिना कुछ खाए पिए सब काम धंधे छोड़े इधर ही बैठे थे, सोच ले वो कितना सर चढ़ जाएंगी आपकी। वो हस्बे आदत उसे जायशा के हवाले से घेर रहा था। तुम अपनी बकवास अभी बंद रखो, ये ना हो सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल दूं। मतलब भाभी का गुस्सा भी आप मुझ मासूम पर निकालेंगे। जुरेज अब की बार सिर्फ इतना ही कह पाया और ये इशारा ही काफ़ी था कि आगे अंजाम बुरा हो सकता है। चाय तो पी लें, मजीद जाने कितना वक्त लगेगा। रात गहरी हो रही थी। वो लोग आजकल वैसे ही फार्म हाउस रुकते थे तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ। अलबत्ता जुरेज हवेली फ़ोन करके नाइट ड्यूटी का कहकर सुबह आने का बता चुका था। हाय एक तो ये मोहब्बतें मेरी समझ से बालातर है, वहाँ वो अंदर पड़ी हैं और ये सरकार मजनू बने बैठे हैं। जुरेज की ज़ुबान फिर से खुजली कर रही थी। दिल शेर, अगर अब जुरेज ने एक लफ्ज़ भी बोला तो धक्के मारकर इसको हॉस्पिटल से बाहर तक छोड़कर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी। सही कहती हैं भाभी, बिल्कुल पत्थर हैं आप, कुछ असर नहीं होता। आपसे तो मोहब्बत करने वाले बस आपसे सर फोड़ते रह जाते हैं। वो जलते कुड़ते बोला। तुम और तुम्हारी भाभी अब बच जाना मुझसे। उसने सुर्ख पड़ती आंखों से उसे घूरा। शुक्र है आपने भाभी तो माना। वो वार्निंग को इग्नोर करता अपने मतलब की बात निकाल चुका था। दिल शेर, तुम्हें क्या कहा था मैंने? अच्छा अब नहीं कहता कुछ। उसने शराफत से हाथ उठाए। बिल आखिर मजीद घंटे भर के इंतजार के बाद ओटी का दरवाज़ा खुला। कॉन्ग्रेचुलेशन, सर्जरी कामयाब रही। बाकी की सूरत हाल पेशेंट के होश में आने पर पता चलेंगी और रिकवरी मरीज की अपनी विल पावर पर है कि वो कितनी जल्दी ठीक होता है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? जाहिर शाह का सवाल मोमिन की तरफ से आया। वो एक दूसरे को जानते थे, उनके दिल जुड़े हुए थे, उन्हें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो जानते थे कि जाहिर उनकी वजह से खुद को नॉर्मल पोस्ट कर रहा है, जबकि वो उस वक्त बिल्कुल भी सुकून में नहीं था। चोट गहरी है और ऐसे में जिस चीज़ का ज़्यादा खतरा होता है वो मेमोरी लॉस या मरीज़ की बिसारत खो जाने का होता है। आप लोग दुआ करें कि वो होश में आए तो उनकी याददाश्त और नज़र दोनों ठीक हों। उफ, इसकी जान बचने की नवीद मिली, मगर खतरों की तलवार में अभी भी उनके सरों पर खतरों की तलवार लटक रही थी। वो ज़िंदगी से भरपूर लड़की आज किन हालों में पहुंच गई थी। वो उसको खुद से दूर करके आने वाले वक्त की अनदेखी अजियत से बचाना चाहता था, मगर वो तो जुदाई के पहले ही कदम पर तकलीफ़ों में जकड़ी गई थी। तुम लोग घर जाओ, बहुत वक्त हो गया। वो खुद पर जब्त के कड़े पहरे लगाता अंदर उठ रहे आतिश फिशां पर बंद बांधता उनके बेआराम होने के ख्याल से बोला। उसे इतनी परेशानी में भी उन्हीं का ख्याल था। हम ठीक हैं भाई, आप रिलैक्स रहे, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगी वो। अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खबर ही मिलेगी। वो तीनों उसे घेरे में लिए उसका साया बने हुए थे। उसने इस बात में सर हिलाते आंखें मूंद कर सर साथ बैठे दिलशेर के कंधे पर टिका दिया। बहुत परेशान कर लिया तुमने जायशा मीर को, अब तुम अपनी खैर मनाओ जायशा रहमान। तुमने जायशा मीर का जुनून देखा ही कहाँ है अभी। बहुत ख्वाहिश है ना तुम्हें मुझसे शादी की, मगर मेरी शिद्दतें सह कहाँ पाओगी तुमने वो तूफ़ान उठाए हैं जिन पर तुम बंद नहीं बांध पाओगी। वो आंखें मूंदे उससे महवे गुफ्तगू था जो आज जायशा मीर को दुनिया से बेखबर की अपने इंतज़ार में जगाए खुद होशो खिर्द से बेगाना अंदर ओटी में पड़ी थी।